प्रकाश विशेषे तेह धरती न नाम ब्रह्म परमात्मा आर स्वयं भगवान. So right now we are on Sri Chaitanya Charitamrita, second chapter. Sri Chaitanya Mahaprabhu, who is the Supreme Personality of Godhead, और शास्त्र के अलग अलग सिद्धांतों से प्रकट कर रहे हैं इस तथ्य को. उसमें सर्वप्रथम तथ्य जो प्रकट किया गया है वो वदन्ति यत् तत्त्वविदं तत्त्वं यज्ञानम अद्वयं ब्रह्मेति परमात्मेति भगवानेति शब्दते. यानी भगवत साक्षात्कार 3 स्तर पे होता है. वो पहला साक्षात्कार है ब्रह्म स्तर पे होना, दूसरा साक्षात्कार है परमात्मा स्तर पर होना, और तीसरा साक्षात्कार है भगवान परम पुरुषोत्तम भगवान श्री कृष्ण. तो तीनों साक्षात्कार जो हैं वह एक ही अंतिम सत्य के हैं, एक ही परम सत्य के हैं, कोई अलग नहीं है. स्वयं कृष्ण ही ब्रह्मण है, कृष्ण ही परमात्मा है, कृष्ण ही परम भगवान भी है. तो जब यह तथ्य को साबित किया जाएगा कि कृष्ण परम भगवान है, और जब इसके बाद श्री कृष्ण चैतन्य महाप्रभु और कृष्ण में कोई भेद नहीं, तभी ये समझ में आ सकता है कि श्री चैतन्य महाप्रभु ही ब्रह्म भी है, ब्रह्म ज्योति उनसे ही आती है. श्री चैतन्य महाप्रभु से परमात्मा भी आते, परमात्मा के विस्तार स्वरूप भी है, और साथ साथ में वह स्वयं भगवान भी है. तो इसलिए प्रकाश विशेष तेह धरे तीन नाम ब्रह्म परमात्मा आर स्वयं भगवान. So in terms of his various manifestations, so this is the 10th verse of the second chapter. In terms of his various manifestation, he is known in 3 features called the impersonal Brahman, the localized Paramatma, and the original personality of Godhead. Srila Jiva Goswami, in this purport, Srila Prabhupada is writing that Srila Jiva Goswami has explained the word Bhagavan in his Bhagavat Sandarbha. The Supreme Personality of Godhead, being full of all conceivable and inconceivable potencies, is the absolute supreme whole. Impersonal Brahman is a partial manifestation of the absolute truth, realized in the absence of such complete potencies. So जब भगवान की बात आती है तो भगवान सभी पोटेंसी, सभी शक्तियों के साथ उतर जाते हैं. तो जब भगवान के, पर जब ब्रह्म ज्योति की बात आती है तो सीमित शक्ति, जैसे सत, भगवान का स्वरूप कैसे? सच चित आनंद. जब ब्राह्मण स्तर पे आते हैं तो सिर्फ सत एस्पेक्ट को ही मैनिफेस्ट करते हैं, पर जब परमात्मा स्तर पे आते हैं तो चित. पर जब भगवत तत्व पे आते हैं, भगवान जब अपने आप को प्रकाश करते हैं तो किस तत्व? तो पूरे 3 एस्पेक्ट के साथ खरे उतर जाते हैं. वो है सत, चित और आनंद. सो इम्पर्सनल ब्रह्मन इज अ पार्शियल मैनिफेस्टेशन, इट्स अ पार्शियल रियलाइजेशन ऑफ द एब्सोल्यूट ट्रूथ. The first syllable of the word Bhagavan is Bha, which means sustainer. Okay, you can write it down, it's very important. The first syllable of the word Bhagavan is Bha, which means sustainer and protector. The next letter Ga means leader, pusher and creator. Then Va means dwelling, that all living beings dwell in the Supreme Lord, and the Supreme Lord dwells within the heart of every living being. So combination all these concepts, combining all these concepts, combination of all these concepts, the word Bhagavan carries the import of inconceivable potency, that is Bha, the combination all this concepts, the word Bhagavan carries the import of inconceivable potency in knowledge, energy, strength, opulence, power and influence. तो ये षड ऐश्वर्य की यहाँ पे बात कर रहे हैं. 6 riches, 6 opulence of Lord, devoid of all variety of inferiority. भगवान इसलिए अच्युत कहते हैं, never falls down. So all time he has all riches, all beauty, all fame, all energy, all strength, all knowledge and all renunciation.
Without such inconceivable potencies, one cannot fully sustain or protect. Our modern civilization is sustained by scientific arrangements devised by many great scientific brains. We can just imagine, therefore, the gigantic brain whose arrangements sustain the gravity of the unlimited number of planets and satellites, and who creates the unlimited space in which they float. So, example, Indian railway system is managed by brains of engineers, or some people, a few, there are some management people who are doing that. And just to manage the particular railway system, there's so many people are involved in it. But Supreme Lord is independent. He doesn't need anyone's help. So he has such a gigantic brain that he can arrange, he can do some arrangements to sustain the gravity of the unlimited number of planets. The planets can float in the unlimited space, which Prabhupada many times says this, कि क्या ऐसे ही सब planets बिना कोई एक planet दूसरे planet से टकराता नहीं है पूरे यूनिवर्स में, इतने इन्यूमरस planets हैं और उस स्पेस में ऐसे फ्लोट हो रहा है कि मानो मतलब सो इजीली, एंड देयर इज़ नो मिसहैप एज सच. कोई एक प्लान दूसरे प्लान से टकराता नहीं है कि ऐसे, तो फिर ऐसे कैसे कह सकते कि इसके पीछे ब्रेन नहीं है. दो ट्रेन आपस में ना टकराने के लिए कितने ब्रेन्स लगते हैं, तो दो प्लैनेट्स टकराते नहीं हैं तो क्या इसके पीछे ब्रेन नहीं लगेगा. सो इफ़ वन कंसिडर द इंटेलिजेंस नीडेड टू ऑर्बिट मैनमेड सैटेलाइट्स, प्रभुपाद यहाँ पे पॉइंट लिख रहे हैं कि मैनमेड सैटेलाइट के पीछे कितने ब्रेन्स लगते हैं, कितने साइंटिस्ट का हार्डवर्क रहता है. सो वन कैन नॉट बी फूल्ड इन टू थिंकिंग दैट देयर इज not a gigantic intelligence responsible for the arrangement of the various planetary systems. So there is no reason to believe that all the gigantic planets float in space without the superior arrangement of a superior intelligence. ये superior arrangement है, and therefore it requires superior intelligence. This subject is clearly dealt with in the Bhagavad Gita, that is 15.13, where the personality of Godhead says, I enter into each planet. गामावश्य से भूतानि धारयमहम ओजसा, ये श्लोक रहेगा. गामावश्य से भूतानि धारयमहम ओजसा पुष्णामि औषधि सर्वा सोमो भूत्वा रसात्मकः. कि आई एंटर इनटू ईच प्लैनेट्स एंड माय एनर्जी, बाय माय कृष्णा's energy, they stay in, or the planets stay in their orbit. And due to moon, and from Krishna's energy only moon is manifested, and that's why due to moon only rasatmaka, all the vegetable fruits has rasa in it, flavor in it. So were the planets not held in the grip of the personality of Godhead, they will all scatter like dust in the air. Modern scientists can only impractically explain this inconceivable strength of the Supreme Personality of Godhead. So the potencies of the syllable bha, ga and va apply in terms of many different meanings. So bha मतलब फिर से मैं दोहराता हूँ, bha is sustainer or protector, ga means leader or creator or pusher, and va is dwelling, like all living beings dwell in Supreme Lord, and the Supreme Lord dwells within the heart of every living entity. So the potencies of the syllables bha, ga and va apply in terms of many different meanings. Through his different potent agents, the Lord protects and sustains everything, but he himself personally protects and sustains only his devotees, just as a king personally sustains and protects his own children, while entrusting the protection and sustenance of the state to various administrative agents. तो जब राजा की बात यहाँ पे उदाहरण दिया गया है कि जब राजा को स्टेट को मैनेजमेंट करना पड़ता है, स्टेट के लोगों को मैनेज करना होता है, तो वो कई एम्प्लॉयज़ या कई मैनेजिंग डायरेक्टर्स होते हैं उनके, या कई सोल्जर्स होते हैं, या कई एजेंट्स होते हैं जिससे वो चीज़ों को मैनेज करता है. ही डोंट गो पर्सनली इन ईच एंड एवरी ऑफिस लाइक अ प्राइम मिनिस्टर is present everywhere through his powers. There is no need for the Prime Minister to enter into each and every office of this country. So similarly, Lord is so powerful and potent that impersonally he can be present everywhere, and he can protect, and he can witness anything and everything, and he can protect the whole universe. Aham sarvasya prabha mata sarvam pravartate. But when it comes to devotees, paritranaya sadhunam, Lord Krishna personally intervene
So Lord Krishna personally protect his devotees. Example given as king who protects his family personally or his child personally. So कई बार उदाहरण आता है ना इसका कि राजा का पुत्र को सेनापति टेस्ट करता है कि राजा के पुत्र को, फिर वो जानबूझकर राजा के पुत्र के एक आइडल बनाकर उसको पानी में फेंक देता है. तो राजा को लगता है कि सच में मेरा पुत्र डूब जा रहा है, तो वो स्वयं कूदी लगा देता है. एंड तभी वो उनको समझ में आता है ये तो छल किया है. तो सेनापति को पूछा कि अरे ऐसे क्यों किया आपने? तो सेनापति कहते हैं कि मैंने इसलिए किया था कि आप बोल रहे थे ना कि भगवान को क्या आवश्यकता है कि भक्तों की रक्षा करने के लिए आने के लिए कितने सारे एजेंट्स हैं उनके पास, वो उनसे क्यों नहीं करवाते? उसी प्रकार आपको क्या आवश्यकता थी, आपके पास कितने सैन्य थे, या आप उनको नहीं कह सकते आपके बच्चे की रक्षा करने के लिए? पर आप खुद स्वयं उतर गए. क्यों? क्योंकि आप बहुत अटैच्ड हैं उनसे. सिमिलरली लॉर्ड इज़ वेरी अटैच्ड टू हिज डिवोटीज. ना हम प्रकाश नो ना हम प्रहषत प्राप्ति न द्विज चाप, वो दूसरा श्लोक है. न मैं द्वेषस्सी न प्रिय. भगवान कहता है मैं किसी से भी द्वेष नहीं करता, ना कोई मेरे लिए आई डोंट पार्शियली फेवर एनीवन. न मैं द्वेषस्ती न प्रिय ये भजंती तु माम भक्त्या, बट अ पर्सन हु इज एंगेज इन माई डिवोशनल सर्विस मयि तेषु चापी अहम. लॉर्ड पर्सनली प्रोटेक्ट्स दैट पर्सन, दैट पर्टिकुलर डिवोटी. So here the example of king is given. So, the Lord is the leader of his devotees. That's why there is one word, Satvatam Pati. He is the husband or the controller of all his devotees. The Lord is the leader of his devotees, as we learn from the Bhagavad Gita, which mentions that the personality of Godhead personally instructs his loving devotees how to make certain progress on the path of devotion, and thus surely approach the kingdom of God. So भोक्ताराम यज्ञ तपसम सर्वलोक महेश्वर सुहृदम सर्वभूतानाम. भगवान सभी के सुहृद हैं. और नमे भक्ता प्रणश्यति, अपने भक्त का विनाश कभी नहीं देख सकते. और इसलिए भगवान जो अनन्य भाव से भक्ति करता है, तेषाम सतत युक्तानाम भजताम प्रीतिपूर्वकम. प्रीतिपूर्वक, प्रेम से, फोर्स से नहीं, प्रेम से कोई भक्ति करता है, सेवा करता है, भगवान कहते हैं ददामि बुद्धि योगम तम, मैं उनको इंटेलिजेंस देता हूँ how to approach the kingdom of God. So Lord is also the recipient of all the adoration offered by his devotees, for whom he is the objective and the goal. तो विषय वस्तु भक्त के लिए सदैव भगवान ही रहते हैं. उनका सुख का विषय वस्तु, जो भक्त नहीं है उनके लिए सुख का विषय वस्तु पति हो सकता है, पत्नी हो सकते हैं, बालक हो सकता है, बेटा हो सकता है, पैसा हो सकता है. बट फॉर अ डिवोटी उनके लिए अगर कोई विषय वस्तु है सुख की, वो सिर्फ भगवान ही है. So for his devotees, the Lord creates a favorable conditions for developing a sense of transcendental love of Godhead. So कई बार सोचेंगे अरे हमको तो फेवरेबल लगता ही नहीं है, फेवरेबल ही नहीं है. जैसे किसी को मसल्स बढ़ाने जिम में, तो फेवरेबल क्या होगा उसके लिए? जिम में मसल्स बढ़ाना, तो फेवरेबल क्या होगा? फिर उसको बिठा देंगे जिम में, सिर्फ रिलैक्स हो जाओ तो मसल ऐसे ही बढ़ जाएंगे. नहीं, तो मसल बढ़ाने के लिए क्या करते हैं? उसको वेट लिफ्टिंग करने बोलते हैं. तो वेट उठाओ. सो वेट उठाने को बोलते हैं, शायद से कुछ पहले इसको कुछ ग्राम्स में वेट उठाएंगे. तुम 100 ग्राम 200 ग्राम उठाओ, पहले दिखाओ, फिर उठाएंगे तो थोड़ा उठाएंगे, फिर बाद में और उठाएंगे, फिर 1 किलो का उठाओ, फिर 2 किलो का उठाओ. फिर ऐसे करते करते हर वीक उसके जो कैपेसिटी है उसको एक्सपांड करने के लिए कोच क्या करता है? उसको स्ट्रेस देता रहता है. उनके मसल्स को जितना स्ट्रेस होगा, जितना पेन होगा, उतने मसल्स ज़्यादा बढ़ सकते हैं. ऑब्वियसली साथ में डाइट भी ज़रूरी है. तो फिर जो व्यक्ति है उसको क्या लगता है कि ये कोच मेरे साथ छल कर रहा है या मुझे बहुत परेशान करके रखा है. तो फेवरेबल यही है टू गिव पेन ड्यूरिंग द ट्रेनिंग. जब पेन दिया जाता है, जब स्ट्रेस लिया जाता है ज़्यादा मसल्स पर, जब ज़्यादा एक्स्ट्रा वेट लिया जाता है, कैपेसिटी को बढ़ाया जाता है, तभी जाके कुछ फ़ायदा होता है. नहीं तो वही एक ही तरह का वेट अगर पूरे साल भर उठा रहेगा तो देयर विल बी नो डेवलपमेंट इन हिज बॉडी. सो सिमिलरली favorable in devotional service means what? Lord is very favorable in devotional service is that the Lord will create such a situation that you will become detached from the society. So मान लीजिए कोई व्यक्ति धन से आसक्त है, तो उसके लिए फेवरेबल क्या होगा भगवान का? उसका धन छीन लेना. सिंपल. ऑब्वियसली बट भगवान उस व्यक्ति का कभी धन नहीं छीनेंगे जो भक्ति भी छोड़ देगा फिर धन के साथ साथ. मान लीजिए कोई व्यक्ति धन के लिए भक्ति करता है, तो फिर ऑब्वियस है कि वो धन जैसे निकल जाएगा तो फिर वो भक्ति भी नहीं करेगा. तो भगवान उसके लिए ऐसी परीक्षा कभी नहीं लेते. ऐसे व्यक्ति की परीक्षा ली जाती है जिसका पास होने का कुछ चांसेस है. तो भगवान क्या कहते हैं? यस्याहम अनुगृह्णामि, भागवतम में श्लोक आता है.
जिन पर मैं अनुग्रह करता हूँ, हरिष्य तद्धनम शनय, उसका धन मैं छीन लेता हूँ। तदस्य तजंती अस्य, ऐसा करने से उसके परिवार हो, उसके रिलेटिव्स हो, उसको वैल्यू देना बंद कर देंगे। पहले ऐसा वैल्यू नहीं देंगे। धन जब तक कमाते हैं ना तो थोड़ा ज़्यादा वैल्यू रहता है। जैसे ही आप एक पैर पे आप एक जगह बैठ जाते हो, या फिर आपको टॉयलेट आप खुद नहीं जा सकते, एक पॉइंट आता है जब कोई व्यक्ति टॉयलेट अपने आप नहीं जा सकता है, किसी की सहायता लेनी पड़ती है, तभी एक्चुअल संसार क्या है पता चल सकता है। एक कहावत होती है, कई बार ओडिया में एक कहावत है, आई थिंक हिंदी में भी होगी, कि संसार क्या है तब पता चलेगा जब अपने आप तुम टॉयलेट नहीं जा सकते। So for his devotees, the Lord creates a favorable condition for developing a sense of transcendental love of Godhead. Sometimes he does this by taking away a devotee's material attachments by force and baffling all his material protective agents. For thus the devotee must completely depend on the Lord's protection. द्रौपदी माता को बहुत विश्वास था कि उनके पति जो उनके रक्षण करेंगे, भीष्म पर विश्वास था, विदुर जी पर विश्वास था, वहाँ पे कितने महानुभाव लोग थे, उन पर सभी पर विश्वास था, पर सभी विश्वास पर पानी फेर दिया और भगवान कृष्ण ने ही उनकी रक्षा की। तो ये जब उनको कन्विंस हुआ कि कोई नहीं, कोई इस घड़ी में कोई भी हमारे काम नहीं है, फिर भी वो अपने आप अपने बल पर जब विश्वास कर रही थी और दुशासन साड़ी खींचे चले जा रहे हैं और एक हाथ से साड़ी पकड़े हुए एक हाथ से भगवान को पुकार रहे हैं। लेकिन हमारा भी होता है ना कि कुछ विश्वास हमारे फाइनेंशियल बैलेंस पर भी होता है और साथ में कुछ विश्वास हमको कृष्ण पर भी होता है, तो दोनों पार्शली भी चलता है कभी कभी। बट लॉर्ड इज एक्सपेक्टिंग वन ट्रैक, बस संपूर्ण शरणागति, एंड दिस इज द ओनली कंडीशन for back to Godhead. So in this way the Lord proves himself that he is the leader of his devotees. क्योंकि भगवान ना सिर्फ उनका मेंटेन करते हैं, ना ही भक्तों की रक्षण करते हैं, पर साथ साथ Lord leads that devotee to go back to Godhead. भगवान स्वयं उनको अपने निर्देशों से, भगवान स्वयं अपने कार्यों से, भगवान स्वयं गुरु के माध्यम से, भगवान स्वयं भक्तों के माध्यम से उस भक्त को सदैव मदद करते रहते हैं ताकि वो अंते नारायण स्मृति, अंतिम समय पे उसको कृष्ण स्मरण आ जाए। So the Lord is not directly attached to the creation, maintenance and destruction of the material world, for he is eternally busy in the enjoyment of transcendental bliss with paraphernalia composed of his internal potency. भगवान रसास्वादन करने वाले, इसलिए रसिक शेखर नाम है उनका। भगवान कृष्ण जो है गोलोक में रसास्वादन करते हैं, गोपियों के साथ रास विहार करते हैं, रास लीलाएँ करते हैं और वृंदावन वासियों के साथ लीला का रसास्वादन करते हैं। उनको कदापि ही उनको ये सब सृष्टि और स्थिति और प्रलय में कोई भी रुचि नहीं है भगवान को। वह ये सब कर रहे हैं एनर्जी अपने शक्ति के माध्यम से, अपने बहिरंगा शक्ति के माध्यम से। जैसे हम कुछ घर बनाते हैं और उस घर को मेंटेन करते हैं तो बहुत आसक्त हो जाते हैं उस घर से। कुछ अगर हम कहें, कितनी बार कह देंगे ना, ये मैंने बनाया है, ये मैंने ऐसा किया है, मैंने इतनी मेहनत की है, मैं कितना पहले एक स्ट्रगल करता था, इस मेहनत से इतने मैं पैसे जुटा के किया, तो ये एक आसक्त हो जाता है ऑटोमेटिकली। बट भगवान क्या है, आसक्त नहीं है। येट एज द इनिशिएटर ऑफ द मटेरियल एनर्जी एज वेल एज द मार्जिनल पोटेंसी ही एक्सपांड्स हिमसेल्फ एज द पुरुष अवतारस हु आर इन्वेस्टेड विथ पोटेंसी सिमिलर टू हिज। तो पुरुष अवतार मतलब विष्णु के अवतार है, गर्भोदक्षाई, कारणोदक्षाई, क्षीरोदक्षाई। द पुरुष अवतार आर ऑल्सो इन द कैटेगरी ऑफ भागवत तत्व बिकॉज ईच एंड एवरी वन ऑफ देम इज आइडेंटिकल विद द ओरिजिनल फॉर्म ऑफ द सुप्रीम पर्सनैलिटी ऑफ गॉडहेड। द लिविंग एंटिटीज आर इज इनफिनिटेसिमल पार्टिकल्स एंड आर क्वालिटेटिवली वन विथ हिम। ये रिपीटेटिव है, कई बार लग सकता है कि जीव जो है भगवान से समान गुणों में है, मात्रा में नहीं। So they are sent into this material world for material enjoyment to fulfill their desires, to be independent individuals, but still they are subject to the supreme will of the Lord. ये जीव का बहन है कि वह इंडिपेंडेंट है और उसको इंडिपेंडेंटली भगवान से सेवा न करते हुए स्वयं भोग करना है, इसके लिए संसार की रचना हुई है और फिर ऐसे जीवों को डाला रहता है। But still, each and every living entity is still dependent on the Supreme Lord. The Lord deputes himself in the state of super soul to supervise the arrangement for such material enjoyment.
द एग्जाम्पल ऑफ अ टेम्पररी फेयर इज क्वाइट अप्रोप्रिएट इन दिस कम्युनिकेशन. मेला जैसे बोलते हैं ना, मेला का एग्जाम्पल दिया. इफ द सिटीजन्स of a state assembly in a fair to enjoy for a short period, the government deputes a special officer to supervise it, and such an officer is invested with all governmental power, and therefore he is identical with the government. When the fair is over, there is no need for such an officer, and he returns home. The Paramatma is compared to such an officer. So परमात्मा का जो जॉब है वो सृष्टि में आता है क्योंकि हर जीव की सदैव इच्छा रही है कि वो भोग करे, और भोग करने के लिए भी सुविधाएं चाहिए, बुद्धि चाहिए. अधिष्ठानम तथा कर्ता कारणम च पृथक विदम विविधच्च पृथक चेष्टा दैवम चैवात्र पंचमम. कोई एक्शन परफॉर्म होने के लिए भी कई चीज़ लगते हैं. अधिष्ठानम तथा कर्ता चाहिए, कोई तो करने वाला चाहिए, मतलब सो डूअर नीड्स. भगवान का साथ चाहिए. कारणम यानी सेंसेस चाहिए. पृथक में विधि से पृथक चेष्टा एंडेवर होना चाहिए. तो बहुत सारे ऐसे कार्य हैं जो आवश्यकता पड़ते हैं कोई कर्म होने के लिए, और जीव की लालसा है भोग करना. इससे सृष्टि के अंत में एक कल्पांत, मान लीजिए कल्पांत में ब्रह्मा जी का दिन समाप्त होने के बाद ब्रह्मा के लोक के जितने भी नीचे के लोग हैं, सभी जो जीव है विष्णु के शरीर में फिर से लीन हो जाते हैं, मर्ज होता है, एज इफ वो सुप्त अवस्था में होते हैं. ब्रह्म संहिता के डिटेल्स में पढ़ेंगे भक्ति सिद्धांत ठाकुर जी के ट्रांसलेशन में और पर्पट्स में, कि जो जीव होते हैं वो सुप्त अवस्था में चले, लाइक एज इफ दे आर इन डीप स्लम्बर. जैसे कोई कोमा में होता है ना, उसको उठाया नहीं जा सकता, अब ऑल्दो जीवित है, फिर वैसे ही भले ही भगवान के पास है सभी जीव, मर्ज है विष्णु के पास में, पर फिर भी उनको इतनी चेतना नहीं है कि वो विष्णु के साथ में, दे आर इन डीप स्लम्बर. एंड द मोमेंट नेक्स्ट डे कम्स, ब्रह्मा जी जैसे सृष्टि शुरू करते हैं, तो सृष्टि जैसे ही शुरू होने के बाद वो सभी जीवों को भगवान फिर से इंसर्ट कर देते. कहाँ पे? सृष्टि में, अलग अलग लोकों में, उनके पिछले दिन के कर्मों के अनुसार. यानी सृष्टि नष्ट होने के बाद उनके कर्म के जो फल है वो नष्ट नहीं होने वाले, वो कर्म के फल वैसे ही डॉर्मेंट स्टेट में रहेंगे. और जैसे ही अगला दिन आ जाएगा तो उस हिसाब से उसको वो स्पीशीज़ मिलेगी जैसा वो उसका पिछले कल्प का या पिछले ब्रह्मा जी के दिन में आखिर में उसने जो कर्म किया था उसके अनुसार उसका होगा. तो अगेन द क्रिएशन हैपन्स, द मेंटेनेंस चलता है, देन अगेन डिस्ट्रक्शन, दिस गोज ऑन एंड ऑन. सो द लॉर्ड डिप्यूट्स हिमसेल्फ इन द स्टेट, द लॉर्ड डिप्यूट्स हिमसेल्फ इन द स्टेट ऑफ सुपर सोल. तो सुपर सोल बन के भगवान क्या करते हैं? सुपरविजन करते हैं सब चीज़ों का. The living beings are not at all or not all in all, they are undoubtedly parts of the Supreme Lord and are qualitatively one with Him, yet they are subject to His control, thus they are never equal to the Lord or one with Him. The Lord who associates with the living being is the Paramatma or Supreme Living Being. No one therefore should view the tiny living beings and Supreme Living Being to be an unequal level. नहीं तो ये मायावाद, ये तो एकत्व हो जाएगा, अद्वैतवाद हो जाएगा कि जीव को और परमात्मा को एक मानना. द ऑल प्रिवेलिंग ट्रुथ दैट एग्जिस्ट इटर्नली ड्यूरिंग द क्रिएशन, मेंटेनेंस एंड एनिहिलेशन ऑफ द मटेरियल वर्ल्ड एंड इन विच द लिविंग बींग्स रेस्ट इन ट्रांस इज कॉल्ड द इम्पर्सनल ब्रह्मण. द ऑल प्रिवेलिंग ट्रुथ दैट एग्जिस्ट इटर्नली, शाश्वतस्य, ड्यूरिंग द क्रिएशन, मेंटेनेंस एंड एनिहिलेशन ऑफ द मटेरियल वर्ल्ड and in which the living beings rest in trance is called the impersonal Brahman. तो जो जीव जो हैं the rest in trance, सत एस्पेक्ट को अनुभव करते हुए, इटर्नैलिटी को अनुभव करते हुए, जो ब्रह्म ज्योति के लालसा जिसको है, ब्रह्म में लीन होने की लालसा है, ऐसे लोग इस साक्षात्कार के पीछे भागते हैं. उसे कहते हैं ब्रह्म निराकारवादी या ब्रह्मवादी. तो ऐसे ब्रह्मवादी जो होते हैं वह कई बार भगवान और ये अंतिम सत्य, परम सत्य को और अपने को एक समझते हैं. तो ब्रह्मवादी में कुछ लोग होते हैं जो मायावादी बन जाते हैं, जो भगवान के स्वरूप को ही नहीं मानते हैं. भगवान का स्वरूप हो ही नहीं सकता, यानी भगवान कृष्ण का स्वरूप भी भौतिक है ऐसा मान लेते हैं. इसलिए व्हेन दे ट्रांसलेट
कृष्ण से मन मना भव मद भक्तो, तो वो लोग कहते हैं कि ये कृष्ण नहीं कह रहे हैं, कृष्ण के जो अंदर के जो ब्रह्म है उसकी बात कर रहे हैं। तो ऐसे सब इसमें होता है। यस प्रभु जी, जो कृष्ण के अंग से जो ज्योति आ रही है, ब्रह्म ज्योति आ रही है, उसमें महाविष्णु और वो सब कृष्ण, इसलिए वो बोल रहे हैं क्या प्रभु जी? एक्चुअली द ब्रह्म ज्योति इज व्हाट ना, ब्रह्म ज्योति जो इतना फैला हुआ है, ब्रह्म ज्योति इतना फैला कि सभी यूनिवर्स भी उसके अंदर ही वास करे। यस्य प्रभा प्रभवतो जगदंड कोटि कोटेश्व अशेष वसुधादि विभूति भिन्नम तद ब्रह्म निष्कलम अनंतम अशेष भूतम गोविंदम आदि पुरुषम तबहम ब्रजामि। सो जो गोविंद जिनसे वह प्रभा आ रही है, यस्य प्रभा प्रभवतो जगदंड कोटि, जिसमें सभी जगदंड, जगदंड यानी यूनिवर्सल एग्स, और एक नहीं कोटि जगदंड, तो सभी जो यूनिवर्स वास कर रहे हैं ना, वो किस पर वास कर रहे हैं? फाइनली एनर्जी क्या है? एनर्जी तो ब्रह्म ज्योति है। तो ब्रह्म ज्योति के ऊपर ही सब कुछ निर्भर है। भगवान भले ही गोलोक निवसति अखिलात्म भूतो, गोलोक में भले ही कृष्ण वास कर रहे हैं, पर उनकी जो प्रभा है, उनकी जो कांति है, वो इतनी लेवल तक फैली क्योंकि अनलिमिटेड है, उसका कोई लिमिट नहीं है। तो पूरी अनलिमिटेड, सूर्य को भी तेज जो आ रहा है वो उनसे ही आ रहा है, चंद्रमा को तेज, सूर्य को जो शक्ति मिल रही है वो मीन्स, इसे सूर्य नारायण कहते हैं। तो ये ब्रह्म ज्योति के ऊपर सारे ब्रह्मांड भी टिके हुए हैं। इससे जीव जब कल्पांत में भी जब जीव अपने शरीर को खो देता है, फिर जीव जब जाता है, तभी वो ब्रह्म ज्योति में ही लीन होने जैसा ही है। वो भी वो ब्रह्म ज्योति नहीं जिसमें मुक्त होने के बाद भौतिक संसार को त्याग करके वो उस स्तर पे जाते हैं, वो वाला ब्रह्म ज्योति यहाँ पे नहीं बोल रहे हैं। भगवान अलग अलग स्तर पे क्षीर सागर में भी वास कर रहे हैं ना, तो क्षीरोदक्षाय विष्णु जो है ना, सो ही इज एक्चुअल परमात्मा, ही इज एक्चुअल परमात्मा हु इज लोकली मैनिफेस्टेड इन ईच एंड एवरी वंस हार्ट। तो वो एक्चुअल मेंटेनर है सभी ब्रह्मांड के, एक्चुअली क्षीरोदक्षाय विष्णु। कारणोदक्षाय विष्णु से तो सभी ब्रह्मांड उत्पन्न होते हैं, तो सभी ब्रह्मांड के अंदर प्रवेश करते हैं गर्भोदक्षाय विष्णु, और क्षीर सागर में वहीं पे वास करते हैं, वही क्षीरोदक्षाय विष्णु। तो क्षीरोदक्षाय विष्णु जो है, ही इज एक्चुअल मेंटेनर ऑफ all living entities, which is an expansion of Lord Krishna. So point to understand is that don't get too confused in it, don't get into too much technicalities in it. हमको सिर्फ इतना ही समझना है कि चैतन्य महाप्रभु परम भगवान है, he is as good as कृष्णा। जैसे कृष्ण से पुरुष अवतार आते हैं, उसी प्रकार भगवान चैतन्य महाप्रभु से भी तीनों पुरुष अवतार आते हैं, गर्भोदक्षाय विष्णु, क्षीरोदक्षाय विष्णु और कारणोदक्षाय विष्णु। और ब्रह्म साक्षात्कार, परमात्मा साक्षात्कार और भगवान साक्षात्कार, ये तीनों साक्षात्कार जो हैं एक ही तत्व का विवेचन किया हुआ है, एक ही तत्व का विवरण है। तो कोई अलग तत्व नहीं। कई लोग बोलते हैं ब्रह्म ज्योति अलग है, ये नहीं, अलग नहीं हो सकता। दैट इज द ओनली वन एब्सोल्यूट ट्रुथ, बट परसीव्ड ऑन डिफरेंट लेवल्स। कोई परसीव करता है ब्रह्म ज्योति, कोई उसके आगे जाता है परमात्मा, कोई उसके आगे जाता है भगवत। तो ये आप समझने के, जिसको रिमेंबर करें, दैट्स इट। नेक्स्ट 2.11 वर्स। वदन्ति तत्त्वविदस् तत्त्वं यज्ञानमद्वयं ब्रह्मेति परमात्मेति भगवानेति शब्दते। द सेम थिंग इज रिपीटेड। Learned transcendentalists who know the absolute truth say that it is non-dual knowledge and is called impersonal Brahman, the localized Paramatma and the personality of Godhead. So this is Sanskrit verse which is coming from the second chapter of Srimad Bhagavatam, first canto, where Suta Goswami answers the question of the Shaunak Adi Rishis concerning the essence of all scriptural instructions. So Tattva Vidaha, Tattva is truth. Vida, one who knows about the truth. Tattva Vidaha. So one who knows, has a knowledge of the absolute truth. So they can certainly understand knowledge about duality because they are on the spiritual platform. The absolute truth is known sometimes as Brahman, sometimes as Paramatma, sometimes as Bhagavan. Person who are in knowledge of the truth know that one who tries to approach the absolute simply by mental speculation will ultimately realize the till impersonal Brahman. And one who tries to approach the absolute through yoga practice will be able to realize Paramatma. But one who has complete knowledge and spiritual understanding realizes the spiritual form of Bhagavan, the personality of Godhead. तो ये जो ज्ञानी है वो ज़्यादा से ज़्यादा स्तर पे जा सकता है ब्रह्म स्तर पर। जो योगी हैं वो स्तर पे जा सकता है परमात्मावादी, ब्रह्मवादी और परमात्मावादी।
और जो व्यक्ति को फुल अंडरस्टैंडिंग, ही हैज़ एन एब्सोल्यूट नॉलेज, साक्षात्कार है, तो वो भगवत स्थिति को समझ सकता है, भगवान के साक्षात्कार तक पहुंच सकता है, जो भक्त है वो. सो डिवोटीज ऑफ लॉर्ड श्री कृष्णा, the son of the king of Vraja, is the absolute truth. They do not discriminate between Sri Krishna's name, form, qualities and pastimes. One who wants to separate the Lord's absolute name, form and qualities from the Lord himself must be understood to be lacking in absolute knowledge. So one who differentiates, one who separates, भगवान का रूप अलग है, भगवान का नाम अलग है, नहीं, एक ही है, इसलिए पूर्ण है भगवान. भगवान का नाम भी पूर्ण है, भगवान का रूप पूर्ण है, भगवान की लीलाएं पूर्ण है. सो अ प्योर डिवोटी नोज दैट व्हेन ही चैंट्स द ट्रांसेंडेंटल नेम कृष्ण, श्री कृष्ण इज प्रेजेंट एज ट्रांसेंडेंटल साउंड. सो प्रभुपाद कई बार एग्जाम्पल बोलते हैं कि वाटर एंड द वर्ड वाटर, ओके, देयर इज अ डिफरेंस. इफ यू वांट टू क्वेंच योर थर्स्ट, प्यास बुझाने के लिए आप वाटर वाटर बोलेंगे तो आपकी प्यास नहीं बुझेगी. आपको पानी एक्चुअल में पानी पीना पड़ेगा तभी प्यास बुझेगी. पर स्पिरिचुअल आध्यात्मिक जगत में कैसा है, भगवान का नाम लाइक वाटर इज इक्वल टू एक्चुअल वाटर. सो भगवान का नाम जो है उसमें भगवान जितनी ही शक्ति है, पूर्ण है, नित्य है, शुद्ध है, अभिन्न है, नाम नामिना, नाम और नामी में अभिन्नता है. So pure devotee knows that when he chants the transcendental name Krishna, he is present in the transcendental sound. He therefore chants with full respect and veneration. So when he sees the forms of Shri Krishna, he does not see anything different from the Lord. If one sees otherwise, he must be considered untrained in absolute knowledge. This lack of absolute knowledge is called Maya. So one who is not Krishna conscious, he is ruled by the spell of Maya under the control of duality in knowledge. So हम एक dual क्या कह सकते हैं, जैसे सही या गलत है, ऊंच नीच, जैसे मतलब ये duality बोलते हैं इसको कभी कभी, और हम भेद करते हैं, कई बार डिस्क्रिमिनेशन करते हैं. We are living in a nature, we are living in a material world where there is duality, sat asat. But for a pure devotee, nothing, no duality is there. He sees each and every as a living entity who is a part and parcel of Lord. सब कुछ भगवान का अंश है, सब कुछ भगवान की प्रॉपर्टी है. इस हिसाब से देखने की वजह से उसके लिए कोई भी चीज़ माया नहीं हो सकती. जिस प्रकार चतुश्लोकी भागवत में माया को क्या बताया है, जब आप कोई वस्तु को भगवान के संबंध में नहीं देखते हैं उसे कहते हैं माया. ओके, फिर से अगेन मान लीजिए एग्जाम्पल, जैसे मैं अपने माता पिता को अगर भगवान के संबंध में नहीं देखूंगा, सिर्फ माता पिता के तौर पे देखूंगा, तो दैट इज़ अगेन इल्यूजन. या अपने बेटे को, माँ अपने बेटे को देखती है सिर्फ मेरा बेटा है, या अपने ये नहीं देखे कि ये भगवान का भी अंश है, तो ये भी माया है. बिकॉज दैट विल हाईलाइट, ऑल्दो वन मे बी अ डिवोटी, बट व्हाट हैपन्स इन अ फैमिली लेवल, all the members of the family are maybe devotee, but your spiritual relationship, okay, gets subsided actually, because your material relationship is so strong that you don't remember only your spiritual relationship. So that's why householders must take association people who are renunciates, but they will definitely make them realize that actually each and every is a part and parcel of Lord. So that's why having special attachment to one and having no attachment to other, like Dhritarashtra, he is having lot of attachment for his own sons but have no attachment for Pandavas. Either ऐसा होना चाहिए था, एक तो एक ज्ञानी है या योगी है, उनको कोई अटैचमेंट नहीं होता है, मतलब दे आर सो हार्ड, दे डोंट हैव एनी अटैचमेंट विद एनीवन, दे आर कंप्लीटली हार्ड. इसलिए दे आर नॉट कंसर्न ऑल्सो कि किसको क्या हो रहा है, क्या पड़े, कुछ नहीं, संसार में हमारा उद्धार हो गया, बस हो गया. पर प्रहलाद महाराज इज सो कंसर्न अबाउट ईच एंड एवरी लिविंग एंटिटी. सो he has some attachment, definitely इसकी attachment नहीं है. Like Kunti Maharani had attachment for Pandavas, and she has very well trained her sons in Krishna consciousness also. So that attachment is good when you trained your dependent in Krishna consciousness. It is good. It's not bad, because if you're attached, then you can train. Similarly, so when that attachment rules over you, and that sort of attachment like Dhritarashtra has, it's very dangerous, not only for that particular Dhritarashtra but also for the sons, because he was not able to correct them.
And attachment does this only. When you have too much attachment and extreme level attachment, you don't want to, or you do not have that much courage to correct that particular person. But if you are affection is different. When you have affection, then definitely you can correct. So attachment, blind attachment should be avoided, and realistic attachment, like yes, he is Lord's part and parcel, amara boli tayar kuch nahi, Krishna's, they are Krishna's servants and I should look after them. So Krishna has given me this duty in this life, so let me fulfill that duty. Okay, and if someone is fulfilling that duty and making his or her dependent in Krishna consciousness, training them in Krishna consciousness, is as equal as sannyasi who is training his disciples in Krishna consciousness. ओके, इट्स एब्सोल्यूट इन नेचर. भगवान की सर्विस भी एब्सोल्यूट होती है. कोई मैथमेटिकल कैलकुलेशन नहीं होता है कि इतने भक्त बनाए गए तो फिर उसको भगवत धाम मिलेगा, इतने भक्त वालों को भगवत धाम नहीं मिलेगा, थोड़ा नीचे का धाम मिलेगा, ऐसे नहीं. सो कृष्णा इज प्रेजेंट एज ट्रांसेंडेंटल साउंड. सो अ डिवोटी वेरी वेल रियलाइज्ड कि भगवान का नाम और भगवान में कोई अंतर नहीं है, इसलिए वो बहुत ही सम्मानपूर्वक भगवान का नाम जप करता है. हाँ, हमारा जप में सम्मान कई बार नहीं होता ना, कई बार हम भूल जाते हैं सम्मान देने के लिए. एक रिचुअल की तरह उसको निभाते हैं, फिर एक बहुत ही कैजुअली नाम लेने लगते हैं. सिर्फ कैजुअल इससे कैजुअलिटी भी हो सकती है. सो ही डज नॉट सी, लाइक फॉर एग्जाम्पल वाइल ड्राइवलिंग, इफ़ यू डोंट रियलाइज द सीरियसनेस ऑफ ड्राइवलिंग और अब सो गए तो फिर एक्सीडेंट हो सकता है. तो इज़ एज रिस्की, यू नो. इससे चैंटिंग बहुत रिस्पॉन्सिबली की जाती है. एंड ही सीज द फॉर्म्स ऑफ कृष्णा ऑल्सो. जब आप भगवान के विग्रह को देखते हैं तो भगवान है, ये समझना नहीं, बल्कि है भगवान, ये पूरा कन्विंस होना. तो ये स्थिति आनी चाहिए. लाइक एक बार शूटिंग हुआ था, शूटिंग मतलब गन से शूटिंग हुआ था टेम्पल के अंदर. वो भी कोई डकैत्स लोग आए थे, शूटिंग कर दिया और गोली जैसे चलाई, गोलियां जैसे चलाई, वैसे क्या हो गया कि सभी डिवोटीज जो है ना वो नीचे झुक गए, कुछ लोग भाग गए, ऐसे हो गया. और कुछ गोलियां जो है डीटीज को लग गई थी उस समय पे. तो प्रभुपाद ने पूछा कि क्या हुआ, कौन कौन थे वहाँ पे, कैसा हो गया ऐसे. तो प्रभुपाद ने वहाँ पे कंसर्न रखा कि इतना बड़ा इंसिडेंट हुआ पर किसी ने भी सोचा नहीं कि भगवान के विग्रह की रक्षा करे. सो जितने भी लोग थे, प्रभुपाद बोले जितने भी लोग थे वहाँ पे उन सब का पतन हो जाएगा, ऐसे प्रभुपाद बोले उस समय पे. तो सच सीरियस थिंग. सो डिटीज आर इक्वल टू लॉर्ड कृष्णा. So if one sees otherwise, he must be considered untrained in absolute knowledge. So this lack of absolute knowledge is called Maya. So one who is not Krishna conscious is ruled by the spell of Maya under the control of a duality in knowledge. So in the absolute, all manifestations of the Supreme Lord are non-dual. Just as the multifarious forms of Vishnu, the control of Maya, are non-dual. जैसे भगवान की विष्णु के जो अवतार है वो नॉन डुअल है, वो एक ही है, कोई अलग नहीं, कोई ये विष्णु में ज़्यादा शक्ति है उसमें नहीं. उसी प्रकार भगवान प्रकृति से भी नॉन डुअल ही है. देखा जाएगा तो प्रकृति भगवान की शक्ति है, तो भगवान से अलग तो ये माया कैसे हो सकती है? क्योंकि हम उस स्थिति में नहीं हैं, हम भगवान के संबंध में नहीं देख पाते हैं, इसलिए हमको कहा जाता है कि ये माया है, ये कृष्ण कॉन्शियस है, ये माया है. सो एम्पिरिक फिलोसोफर्स हु pursue the impersonal Brahman accept only the knowledge that the personality of living entity is non-different from the personality of the Supreme Lord. तो एक सत्य है कि भगवान और जीव में, परम सत्य और जीव में कोई अंतर नहीं है, तो एक ही सत्य को पकड़ रहे. And the mystic yogas who try to locate the Paramatma accept only the knowledge that the pure soul is not different from the super soul. तो परमात्मावादी योगी लोग भी हैं, वो भी यही चीज़ को समझ रहे हैं कि आत्मा और परमात्मा में भिन्नता नहीं है. तो दोनों भी क्या होता है ना, कई बार जो इम्पर्सनल कंसेप्शन में वो चले जाते हैं, कई बार इवन योगी और ज्ञानी दोनों भी ब्रह्मवादी स्तर पे आ जाते हैं. सो द एब्सोल्यूट कंसेप्शन ऑफ अ प्योर डिवोटी हाउएवर इंक्लूड्स ऑल अदर्स. अ डिवोटी डज नॉट सी एनीथिंग एक्सेप्ट इन इट्स रिलेशनशिप विद कृष्णा एंड देयरफॉर हिज रियलाइजेशन इज मोस्ट परफेक्ट ऑफ ऑल. इससे भगवत तत्व में क्या है, संपूर्ण साक्षात्कार है भगवान रियलाइजेशन में.
उसमें भगवान कृष्ण परमात्मा है, परमात्मेति चापि युक्त हृदि सर्वस्य विष्टितम, कृष्ण गीता में कहते हैं मैं सबके हृदय में परमात्मा हूँ। साथ साथ में ब्रह्म ज्योति भी समझ सकते हैं, यस्य प्रभा ब्रह्मणो ही प्रतिष्ठा हम, ब्रह्म ज्योति मेरे से ही उत्पन्न होती, मेरे ही शरीर की कांति, कृष्ण गीता में कहते हैं। तो ये चीज़ वो बहुत ही अच्छे से समझ सकता है व्हेन ही हैज़ रियलाइजेशन ऑफ द हाईएस्ट लेवल, दैट इज भगवान रियलाइजेशन। 2.12 ताहार अंगेर शुद्ध किरण मंडल उपनिषद कहे तारे ब्रह्म सुनिर्मल। What the Upanishads call the transcendental impersonal Brahman is the realm of the glowing effulgence of the same supreme person. तो कई बार तत्ववादी जो हैं वो पूरी तरह निषेध कर देंगे कि नहीं ऐसा कुछ एक है ही नहीं, हम तो अलग ही है, भगवान और हम अलग ही हैं, ब्रह्म ज्योति में लीन होना ये सब ठीक नहीं है, बकवास है सब। पर अचिंत्य भेदाभेद तत्व महाप्रभु का ये कहता है कि यस यू आर सेइंग राइट, ब्रह्म ज्योति इज देयर, बट ये सबसे पहला साक्षात्कार है, उसके आगे भी कई साक्षात्कार है। सो ब्रह्म ज्योति क्या है? इट्स एन इफल्जेंस ऑफ द सेम सुप्रीम पर्सनैलिटी ऑफ गॉडहेड। So the 3 mantras of the Mundaka Upanishad gives information regarding the bodily effulgence of the supreme personality of Godhead. Hirannamaya pare koshe virajam brahma nishkalam tachubram jyotisham jyotistad yat atma vido vidoh na tatra suryo bhati na chandra tarakam nema vyudito bhanti kutoyam agnih tameva bhantam anubhati sarvam tasya bhasa sarvam idam vibhati brahmaevedam amritam purastad brahma पश्चात ब्रह्म दक्षिणतश्चोत्तरेण अधश्चोर्ध्वं च प्रस्ततरं ब्रह्मैवेदं विश्वविदं वरिष्ठम्। In the spiritual realm beyond the material covering is the unlimited Brahman effulgence. भौतिक ब्रह्मांडों के बाद, भौतिक संसार के बाद विरजा नदी को क्रॉस करने के बाद ब्रह्म ज्योति, आई थिंक कैलाश धाम होता है, फिर ब्रह्म ज्योति होती है। So which is free from material contamination. That effulgence white light is understood by transcendentalists to be the light of all lights. In that realm there is no need of sunshine, na tad bhasate shurna shrangana pavakah, no moonshine, no fire, no electricity for illumination. क्योंकि सभी प्लैनेट जो सेल्फ इफल्जेंट है स्पिरिचुअल वर्ल्ड में, indeed whatever illumination appears in the material world is only a reflection of that supreme illumination. So that Brahman is in front and in back, in the north, south, east and west, and also overhead and below. In other words, the supreme Brahman effulgence spreads throughout both the material and spiritual skies. तो जैसे मैंने कहा कि यस्य प्रभा, भगवान कृष्ण की जो शरीर की कांति है वो ऐसी फैली हुई है तो अध्यात्म जगत ही नहीं बल्कि सभी भौतिक जगत भी उस पर निर्भर है। सबका चलन, सबका संरक्षण और मेंटेनेंस जो हो रहा है वो इसी ब्रह्म ज्योति के आधार पर हो रहा है। चर्म चक्षे देखे जैचे सूर्य निर्विशेष ज्ञान मार्गे लैते नारे कृष्णेर विशेष। As with the naked eye, one cannot know the sun except as a glowing substance. Merely by the philosophical speculation, one cannot understand Lord Krishna's transcendental varieties. So, एक साधारण व्यक्ति को जब वो सूर्य का दर्शन करता है तो उसको लाइट बॉल नज़र आता है या ग्लोइंग सब्सटेंस दिखाई देता है, तो थोड़ा so he will not be able to understand what is happening in the sun planet just by living or residing in this particular globe. He will not be able to judge until unless you don't penetrate or you don't have some authentic knowledge. He will not be able to know. So that's why just by philosophical speculation, अंदाज लगाने से कुछ होने वाला नहीं है. One cannot understand Lord Krishna's transcendental varieties. And now this, the important words again quoted here is यस्य प्रभा प्रभवतो जगदंड कोटि कोटेश वशेष वसुधादि विभूति भिन्नम तद ब्रह्म निष्कलम अनंतम अशेष भूतम गोविंदम आदि पुरुषम तमहम भजामि. So I worship Govinda, the primeval Lord who is endowed with great power, the glowing effulgence.
of his transcendental form is the impersonal Brahman, which is absolute, complete, unlimited, and which displays the varieties of countless planets with the different opulences in millions and millions of universes. So the verse appears in the Brahma Samhita, each and every one of the countless universes. So each and every one of the countless universes is full of innumerable planets. Each and every one of the countless universes is full of innumerable planets with different constitutions and atmospheres. All this come from the unlimited non-dual Brahman or complete whole which exists in absolute knowledge. So the origin of that unlimited Brahman effulgence is the transcendental body of Govinda, who is offered respectful obeisances as the original and supreme personality of Godhead. कोटि कोटि ब्रह्मांडे जे ब्रह्मेर विभूति सेई ब्रह्म गोविंदेर हय अंग कांति. Same thing is repeated of this verse Yasya Prabha, that it's a Govinda Kanti. Brahma Jyoti is nothing but Govinda Kanti. भगवान कृष्ण के स्वरूप की कांति है. The opulences of the impersonal Brahman spread throughout the millions and millions of universes. That Brahman is but the bodily effulgence of Govinda. Sei Govinda bhajiyami teho mora pati tahar prasade mora haya srishti shakti. So I worship Govinda, he is my Lord. Only by his grace am I empowered to create the universe. So ब्रह्मा जी को भी एम्पावरमेंट कृष्ण से मिलता है, जिनसे इस ज्योति ब्रह्म ज्योति आती है. Although the sun is situated far away from other planets, its rays sustain and maintain them all. Indeed, the sun diffuses its heat and light all over the universe. Similarly, the supreme Sun, Govinda, diffuses his heat and light everywhere in the form of his different potencies. The sun's heat and light are non-different from the sun. In the same way, the unlimited potencies Govinda are non-different from Govinda himself. So, भौतिक शक्ति, प्रकृति भी भगवान गोविंद की शक्ति है. तो भगवान से अभिन्न होने के कारण, भगवान की शक्ति होने के कारण वो माया कैसे हो सकती है? सो भगवान के संबंध में हमको जानेंगे तभी कोई भी चीज़ माया नहीं है. देयरफॉर द ऑल परवेसिव ब्रह्मन इज द ऑल परवेसिव गोविंद. द भगवद गीता क्लियरली मेंशन्स दैट द इम्पर्सनल ब्रह्मन इज डिपेंडेंट अपॉन गोविंद. ब्रह्मणो ही प्रतिष्ठाहम 14.27 वर्स. दैट इज द रियल कंसेप्शन ऑफ एब्सोल्यूट ट्रुथ. सब कुछ निर्भर है भगवान कृष्ण के ऊपर. So here the impersonal Brahman is dependent on Govinda, that Govinda is the cause of all causes. Sarva karana karanam. Yes. What is the question? So next verse 2.17. Munayo vata vasanaha Shramana urdhva manthinah brahmakhyam dhama te janti shantaha sannyasino amalaha. So naked saints and sannyasis who undergo severe physical penances, who can raise the semen to the brain, and who are completely equipoised in Brahman, can live in the realm known as Brahmaloka. तो ये कोई साधारण व्यक्ति की बस की बात नहीं है. कोई व्यक्ति बहुत नैष्ठिक ब्रह्मचार्य है, ऊर्ध्वरेत ब्रह्मचार्य है, तो और जो कुछ उनको शरीर से लेना देना नहीं है, बहुत सन्यासी है, वैरागी हैं, बहुत तपस्वी है, ऐसे लोग ब्रह्मलोक तक जा सकते हैं जो ब्रह्मन को जानते हैं. इन दिस वर्स फ्रॉम श्रीमद् भागवतम, वातवासनः refers to mendicants who do not care about anything material, including clothing, but who depend wholly on nature. Such sages do not cover their bodies, even in severe winter or scorching sunshine. They take great pains not to avoid any kind of bodily suffering, and they live by begging from door to door. They never discharge the semen either knowingly or unknowingly. By such celibacy, they are able to raise the semen to the brain.
Thus they become most intelligent and develop very sharp memories. Their minds are never disturbed or diverted from contemplation on the absolute truth, nor are they ever contaminated by desire of material enjoyment. By practicing austerities under strict discipline, such mendicants attain a neutral state transcendental to the modes of nature and merge into the impersonal Brahman. So ऐसे लोगों का गंतव्य है जो इतने सिद्ध लोग हैं, इतने ब्रह्मचारी नैष्ठिक ब्रह्मचर्य जो पालन किए हैं, जो कभी भी उनका मन विचलित इंद्रिय से नहीं होता है, एंड नोइंगली अननोइंगली दे नेवर डिस्चार्ज सेवन. सो दिस इज कॉल्ड नैष्ठिक ब्रह्मचारी. ये बहुत ही टफ है और आजकल के लिए रेयरली इट कैन बी अचीव्ड बाय एनीवन. 2.18 आत्मांतर्यामी जारे योग शास्त्रे कया सेहा गोविंदेरा उषा विभूति है जेहया. He who is discharged in the Yoga Shastras as the indwelling super soul, Atma Antaryami, is also a plenary portion of Govinda's personal expansion. Got it? अभी परमात्मा के बारे में बात है, ठीक है. अभी ब्रह्म के बारे में बोल दिया, और ब्रह्म लोक तक कौन जाता है, और अभी है परमात्मावादी के बारे में. The Supreme Person of Godhead is naturally joyful. His enjoyments or pastimes are completely transcendental. He is in the fourth dimension of existence, for although the material world is measured by the limitations of length, birth, breadth and height, the Supreme Lord is completely unlimited in his body, form and existence. He is not personally attached to any of the affairs within the material cosmos. The material world is created by the expansion of his Purusha avatars, who direct the aggregate material energy and all the conditioned souls. By understanding the three expansion of the Purusha, a living entity can transcend the position of knowing only the 24 elements of the material world. So साक्षात्कार जब किसी को हो जाता है, कोई जान लेता है तीन पुरुष अवतार के बारे में, then he can transcend, वो दिव्य स्तर पे आ सकता है by understanding the three expansions of the Purusha. So one of the expansions of Mahavishnu is Kshirodakshai Vishnu, the super soul within every living entity. As the super soul of the total aggregate of living entities, or the second Purusha, he is known as Garbhodakshai Vishnu. So super soul within every living entity and super soul of the total aggregate of living entities. दो अलग अलग चीज़ है. एक तो एवरी लिविंग एंटिटी के इंडिविजुअली जाके जो बसते हैं वो है क्षीरोदक्षाय विष्णु, और एग्रीगेट सभी लिविंग एंटिटीज के जो परमात्मा हैं वो गर्भोदक्षाय विष्णु है, जो उनके नाभि से कमल पर ब्रह्मा जी का जन्म होता है. एंड एज द क्रिएटर और ओरिजिनल कॉज ऑफ इनन्यूमरेबल यूनिवर्स और द फर्स्ट पुरुषा हु इज लाइंग ऑन द कॉस्टल ओशन, ही इज कॉल्ड महाविष्णु, दैट इज कारणोदक्षाय विष्णु. ही इज द अल्टीमेट कॉज ऑफ ऑल दिस यूनिवर्सेस. So the three Purushas direct the affairs of the material world. The authorized scriptures direct the individual souls to revive the relationship with the super soul. Indeed, the system of yoga is the process of transcending the influence of the material elements and by establishing a connection with the Purusha known as Paramatma. One who has thoroughly studied the intricacies of creation can know very easily that this Paramatma is the plenary portion of the Supreme Being, Shri Krishna. जहाँ तक कि भगवद गीता भी अच्छी तरह से पढ़ लेंगे उससे समझ में आएगा कृष्णा ही परमात्मा है. महाभारत के कई लीलाओं में समझ में आता है कि जो चीज़ बताई नहीं गई है तो भी भगवान को पता चल जाता है. तो भगवान परमात्मा रूप में एक स्वयं कृष्ण गोविंद ही है, परमात्मा है. एंड इसलिए जो शास्त्र होते हैं वो सदैव भगवान जो जीव का परमात्मा से संबंध है उसको दर्शाता है, और कैसे दिव्य स्तर पे आना है भौतिक तत्वों से उठकर. भौतिक तत्व में जैसे पंच तत्व आता है, भूमिरपुन वायु खन बुद्धि एवच, अहंकार मित्यम में मन बुद्धि अहंकार आता है, फिर कर्मेंद्रिय आते हैं, ज्ञानेंद्रिय आते हैं, तो ये सब मिलकर मटेरियल एलिमेंट्स बनते हैं. तो इसको लांग कर दिव्य स्तर पर जाके व्यक्ति को भगवान से अथवा परमात्मा से, यहाँ पे परमात्मा है, परमात्मा से संबंध जोड़ना होता है. ये निर्देश सदैव सभी शास्त्र देते हैं. दैट इज परमात्मा रियलाइजेशन. परमात्मा नोन अदर देन लॉर्ड श्री कृष्णा हिमसेल्फ.
नेक्स्ट वर्स। 2.19 अनंत स्फटिके जैचे एक सूर्य भासे तैचे जीवे गोविंदेर अंश प्रकाशे. As the one sun appears reflected in countless jewels, so Govinda manifests himself as Paramatma in the heart of all living entities. तो जैसे सूर्य है, कई नीचे पॉट्स इसके अंदर अगर जल रख देंगे या चंद्रमा है ऊपर, तो सभी पॉट्स के अंदर वो चंद्रमा का दर्शन हो सकता है. लिक्विड के रिफ्लेक्शन में अपना चंद्रमा का जो बिंब है, प्रतिबिंब है, वो आ सकता है. तो इस सब जगह चंद्र, उसी प्रकार भगवान कृष्ण जो है भगवान परमात्मा रूप में सभी के जीवों के हृदय के अंदर स्थित है. सो द सन इज सिचुएटेड इन अ स्पेसिफिक लोकेशन बट इज रिफ्लेक्टेड इन काउंटलेस ज्वेल्स एंड अपीयर्स in innumerable localized aspects. Similarly, the Supreme Personality of Godhead, through eternally present in his transcendental abode, Golok Vrindavan, is reflected in everyone's heart as the Super Soul. In the Upanishad, it is said that the Jiva and the Paramatma are like two birds sitting in the same tree. The Super Soul engages the living being in executing fruitive work as a result of its deeds in the past, but the Paramatma has nothing to do with such engagements. तो परमात्मा सदैव जीव के हृदय के अंदर वास करता है. एक ही ब्रांच पर एक जीव होता है, एक परमात्मा होता है. पक्षी के रूप में इसकी तुलना की गई है. अब परमात्मा सदैव उनको गाइडेंस, जीव को गाइड करता रहता है कि क्या भी करना है. उसके कर्मों के अनुसार ही एंगेजेस लिविंग बीइंग इन एग्जीक्यूटिंग फ्रूटी वर्क. कर्मकांड, कर्म फल, जो फल है, फल की आशा करता है, तो वो फल प्राप्त करने के लिए प्रेरित करते हैं परमात्मा. इसलिए दैट्स व्हाई वी हैव टू चेंज आवर डिज़ायर. इच्छा, हमारी जो इच्छा है परमात्मा कोऑपरेट करते हैं. तो बट परमात्मा नथिंग टू विद सच एंगेजमेंट्स. आप कितना भी कुछ भोग कर रहे हैं, परमात्मा से कुछ लेना देना नहीं है. एज सुन एज द लिविंग बीइंग सीजेस टू एक्ट इन टर्म्स ऑफ रूटीन वर्क एंड टेक्स टू सर्विस ऑफ द लॉर्ड, कर्मकांड के नियमों को छोड़ के जब भगवान की सेवा करने लगता है, कमिंग टू नो ऑफ हिज सुप्रीमेसी, ही इज इमीडिएटली फ्रीड फ्रॉम all designations and in the pure state he enters into the kingdom of God known as Vaikuntha. So जैसे ही व्यक्ति जो है अपने कर्मफल के जो आश्रय जो लेता था वो छोड़कर वो भगवान की सेवा स्वीकारता है, तो वह भगवान की महत्ता को समझकर वो पूरी ते पाप से, कलमश से दूर होकर वो सभी डेजिग्नेशंस, उपमाएँ, उपाधियाँ को छोड़कर वह भगवत प्राप्ति या वैकुंठ कर सकता है. द परमात्मा और सुपर सोल, द गाइड ऑफ द इंडिविजुअल लिविंग बींग्स, डज नॉट टेक पार्ट इन फुलफिलिंग द डिजायर्स ऑफ द लिविंग बींग्स बट ही अरेंजेस फॉर द फुलफिलमेंट बाय मटेरियल नेचर. भगवान स्वयं कभी पार्टिसिपेट नहीं करते जीव के भोग के लिए, पर वह अरेंज करके देते हैं भौतिक संसार के माध्यम से. एज सुन एज ऑल लिविंग एंड लिविंग इन इंडिविजुअल सोल becomes conscious of the eternal relationship with the super soul and looks only toward him, he at once becomes free from the entanglements of material enjoyment. जैसे ही व्यक्ति भोग की लालसा छोड़कर जो परमात्मा रूपी जो पक्षी उसकी तरफ देखता है, तभी वह सभी भौतिक बंधनों से छूट जाता है. Christian philosophers who do not believe in the law of karma put forward the argument that it is absurd to say one must accept the result of the past deeds of which he has no consciousness. A criminal is first reminded of his misdeeds by witness in a law court, and thus he is punished. If death is complete forgetfulness, why should a person be punished for his past misdeeds? So criminal is first reminded of his misdeeds. जैसे ही किसी को सजा दी जाती है, पहले उसके पाप कबूल करते हैं. कभी कभी उसको कोई अगर कोर्ट में कोई अगर वकील नहीं लड़ रहा है उसकी केस, तो उसको गवर्नमेंट एक वकील नियुक्त करके देता है. जिस प्रकार अब आतंकवादियों में देखेंगे, आतंकवादी पकड़े गए थे या पकड़ा गया था, तभी उसकी केस भी चल रही थी. सो अनटिल अनलेस ही डोंट कन्फेस, तो पनिशमेंट, जब तक कन्फेशन होता है तभी पनिशमेंट हो जाता है. सो इफ डेथ इज कंप्लीट
forgetfulness. Why should a person be punished for his past misdeeds? अगर मृत्यु से व्यक्ति सभी कुछ भूल सकता है तो उसको पूर्व कर्मों के फल क्यों मिल रहे हैं? क्या आवश्यकता है? द कंसेप्शन ऑफ द परमात्मा इज इन एन इनविंसिबल आंसर टू दिस फैलेशियस आर्ग्यूमेंट्स. द परमात्मा इज द विटनेस ऑफ द पास्ट एक्टिविटीज ऑफ द इंडिविजुअल लिविंग बींग्स. मतलब जीव तो भूल रहा है ना पिछले कर्मों को, जीवों जन्म के कर्मों को, तो उसको ऐसे कौन स्मरण दिला रहा है कि वो फिर से वो कंटिन्यू कर सकता है? तो वो कौन दे रहा है? परमात्मा करवा रहा है. द परमात्मा इज विटनेस ऑफ द पास्ट एक्टिविटीज ऑफ इंडिविजुअल सोल. A man may not remember what he has done in his childhood, but his father, who has seen him grow through different stages of development, certainly remembers. Similarly, the living being undergoes many changes of the body through many lives, but the super soul is always with him and remembers all his activities despite his evolution through different bodies. तो जिस प्रकार कोई व्यक्ति है, कोई इसका पिता होता है, तो पिता को पता है इस बच्चे ने बचपन में क्या क्या किया था, कैसे कर रहा था, क्या खेल रहा था, क्या खा रहा था, क्या पहन रहा था, पर वो बच्चे को शायद ही याद रहे. सिमिलरली लॉर्ड रिमेंबर्स ऑल वंस कर्मिक रिएक्शंस एंड अकॉर्डिंगली ही गाइड्स टू परफॉर्म डिवोशनल सर्विस. Accordingly, not only perform devotions, even someone wants to enjoy materially, even he can guide in that way. And if someone wants to come towards him, then Krishna can guide him in that way also. So it's like that. So we will stop here.